Hello everyone, welcome to the class and this is me Ankita Kabra. So we are gonna start carboxylic acid, okay? Aldehyde ketones and carboxylic acid का ये part है, तो हम already aldehyde ketone complete कर चुके थे, तो आज हम start करेंगे carboxylic acids, okay? Now what are carboxylic acids? So these are the organic compound in which hydroxyl group is directly attached to the carbonyl group, okay? Like हम ऐसा structure देखते हैं, this one here, RCOOH. To be more precise, we can write it as RC double bond OH, right? तो अभी देखिए ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, this group is attached to the carbonyl group. This is carbonyl group, right? This group is attached to the carbonyl group. तो ऐसा कहीं पे आपको दिखता है तो that is carboxylic acid. Okay. Now COOH group is the functional group which is known as carboxyl group. ठीक है? COOH group is the functional group in carboxylic acid. Okay. So ये जो ग्रुप है इस ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिल ग्रुप. इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी है और इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है. आप देख सकते हो C डबल बॉन्ड O भी है और OH भी है. तो C डबल बॉन्ड O को हमने कार्बोनिल बोला और OH को हमने हाइड्रोक्सिल बोला, राइट? एंड बोथ आर अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम. ओके, सो कार्बोनिल plus hydroxyl, okay, that will give you carboxyl. Carb from carbonyl, oxyl from hydroxyl. तो जो functional group है that is carboxyl. Okay. Now ये जो R group है which is attached to your functional group COOH, this R group may be different. Okay, they vary. Now ये जो R group है ये aliphatic भी हो सकता है या फिर ये aromatic भी हो सकता है. ओके, तो डिपेंडिंग कि कौन सा ग्रुप आपके COOH ग्रुप को अटैच्ड है, दे आर क्लासिफाइड एज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, सो आई होप दिस मच इज अंडरस्टूड. फंक्शनल ग्रुप COOH. ओके, कार्बोनिल ग्रुप है जिसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच्ड है. कार्बोनिल कार्बन को अटैच्ड है हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ओके, so don't get confused. Now as I said, aliphatic carboxylic acid and aromatic carboxylic acid. तो अगर R group attached है to your COOH, तो at that time it is aliphatic carboxylic acid, right? That means straight chain, right? Because R group is alkyl group, तो straight chain होगा, है ना? Aromatic carboxylic acid मतलब benzene ring attached है to your कार्बोक्सिल ग्रुप, या फिर जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, राइट? तो उस टाइम पे ये कंटेन बेंजीन रिंग, तो दैट इज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड? एसिटिक एसिड, राइट? CH3COOH. okay, this is the example of aliphatic carboxylic acid. Then propionic acid, butyric acid. Okay, all is an example of aliphatic carboxylic acid. Now अगर हम aromatic की बात करें, aromatic carboxylic acid की बात करें, तो ये देखो, here one COOH group is directly attached to the benzene ring, right? This is famously known as benzoic acid, ये तो हमको पता ही है, right? अभी इसके साथ this COOH group is directly attached to the benzene ring, but एक CH3 group भी है, okay? तो that is टोलविक एसिड, क्योंकि अगर हम ये COOH यहाँ से हटा दे एंड देयर इज ओनली बेंजीन रिंग विद CH3, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? टोलविन होगा, राइट? अभी हमने क्या किया, इस टोलविन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया बाय COOH, तो ये बन गया टोलविक एसिड. अभी डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द COOH ग्रुप, दे आर ऑर्थोटोलविक, मेटाटोलविक एंड पैराटोलविक. ओके, सो जो पेरेंट कंपाउंड होता है ना इन केस ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज बेंजोइक एसिड.
in which carboxyl group COOH group is directly bounded to the aromatic ring. Okay, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जिसमें COOH group is not directly bounded to the aromatic ring but it is attached to the side chain, like यहाँ पे CH2 COOH. okay, ऐसा भी हो सकता है. ओके तो ये यहाँ पे COOH is not directly attached to the benzene ring, it is attached to the side chain, right, which is attached to the benzene ring. ओके ये COOH ग्रुप है CH2 ग्रुप को अटैच्ड है जो कि बेंजीन रिंग को अटैच है. COOH डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच नहीं है. तो ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं. ओके नाउ जैसे कि हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे थे, तो जो R ग्रुप है दैट इज अल्किल ग्रुप, ये हमको पता ही है, राइट. तो डिपेंडिंग कि जो R ग्रुप है वो किस तरीके का है, वेदर इट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ओके दे आर फर्दर क्लासिफाइड. ओके तो एलिफेटिक में सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड. सैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होते, राइट, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, ऑल दिस टाइप ऑफ एसिड. ओके अनसैचुरेटेड में क्या होता है, अनसैचुरेटेड में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड. ओके सो दैट काइंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज unsaturated aliphatic carboxylic acid. I hope this much is understood to you. Okay so now the next classification is on the number of carboxylic group present in the compound. मतलब अगर गिवन कंपाउंड में अगर सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो दैट इज मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड. लाइक हम अगर एसिटिक एसिड की बात करें CH3COOH, तो इसमें कितने COOH ग्रुप है, इसमें सिर्फ एक COOH ग्रुप है, राइट. सो दिस इज मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके बट इफ वी टॉक अबाउट ऑक्सैलिक एसिड में देयर आर टू COOH ग्रुप. ओके मतलब COOH COOH. तो यहाँ पे कितने COOH ग्रुप है, दो. तो दिस इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज मोनो, डाइकार्बोक्सिलिक एंड पॉलीकार्बोक्सिलिक. ओके मोनो मतलब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, डाई मतलब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे, पॉलीकार्बोक्सिलिक मतलब दो से ज्यादा प्रेजेंट होंगे. ओके तो कुछ सिलेक्टेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो like malonic acid is there, okay, succinic acid is there. Succinic acid again important है, oxalic acid का structure important है, succinic acid का structure important है. okay adipic acid हमने देखा था पॉलीमर के केस में, right, COOH CH2/4 COOH, ये structure हमने देखा था. fumaric acid again it is important. okay यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, राइट, तो ये अनसैचुरेटेड है. आई चीज समझ में. सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ग्लूटारिक एसिड इज अगेन इंपॉर्टेंट. ओके मैलोनिक एसिड एक CH2 है, दो COOH के बीच में. ओके सो ऑल दिस आर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. तो आपको तो ये पता होना चाहिए एटलीस्ट कि जो नाम दिए गए हैं ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है या मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है. एटलीस्ट दिस यू शुड नो. ओके और कुछ इंपॉर्टेंट एसिड है जिनके स्ट्रक्चर भी आपको पता होने चाहिए, लाइक ऑक्सैलिक, सक्सेनिक, एडिपिक तो हमने देख ही लिया था इन केस ऑफ पॉलीमर. ओके मैलोनिक हो गया. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ओके नाउ अगर हम एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक रिंग को भी एक से ज्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच रह सकते हैं. ओके लाइक इन दिस केस यहाँ पे अगर COOH है तो और एक COOH which is directly attached to the ring. So this is dicarboxylic aromatic acid, carboxylic acid. Okay, and this is phthalic acid. इसका नाम क्या है, इसका नाम है phthalic acid. तो ये चीज आपको याद रखनी है कि स्ट्रक्चर क्या है और वो डाइकार्बोक्सिलिक है, मोनोकार्बोक्सिलिक है, कौन सा है. ओके सो मोनोकार्बोक्सिलिक के तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है, butyric acid, valeric acid, caproic acid. Okay, there are number of example of monocarboxylic. Dicarboxylic जो कुछ selective थे जो यहाँ पे enlist कर दिए हैं. Okay, और ये उनके IUPAC नेम है. Okay, तो जब हम IUPAC पढ़ेंगे at that time आपको समझ में आ जाएगा कि IUPAC नेमिंग कैसे की गई है. Okay,
सो ये ट्रांस और सिस दिया है, दैट इंडिकेट्स कि ये जो डबल बॉन्ड है इसके अकॉर्डिंग देयर इज अ पोजीशन, ओके, इसके अकॉर्डिंग आपने अरेंजमेंट किया है COOH ग्रुप का. ट्रांस मतलब अपोजिट साइड पे है और सिस मतलब सेम साइड पे है, ओके, तो वो उसके अकॉर्डिंग नेमिंग की गई है. तो आई होप इतना क्लियर हो गया सबको, ओके. मूविंग फर्दर, नाउ नेमिंग सिस्टम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ बहुत सारे एसिड्स ऐसे हैं जो IUPAC नेम से नहीं बट कॉमन नेम से यूज करते हैं हम लोग. लाइक एसिटिक एसिड इज द मोस्ट कॉमन वर्ड विच वी यूज्ड, ओके, वी नेवर से इथेनोइक एसिड, है ना. तो कॉमन नेम जो है वो बहुत ऑफनली यूज होता है इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ जब ये जो वर्ड्स है फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटेरिक, all these are derived from Greek and Latin words, okay. Like formic word is derived from formica which means ant, okay. तो ये formic word formica से आया है जिसका मतलब होता है ant. मतलब अगर हमें चींटी काटती है तो क्या होता है, हमें जलन होती है, राइट, इन्फ्लेशन हो जाता है स्किन के ऊपर. सो दैट इज बिकॉज ऑफ सिक्रेशन ऑफ दिस फॉर्मिक एसिड, क्योंकि उनमें फॉर्मिक एसिड होता है, ओके. एसिटिक एसिड, तो एसिटिक जो वर्ड है इट इज डिराइव फ्रॉम एसिटम विच मीन्स विनेगर. हमको पता है एसिटिक एसिड इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ विनेगर, राइट, तो ये वहां से आया है. देन प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोन इज द फर्स्ट फैट, ओके, सो वहां से आया है प्रोपियोनिक एसिड. ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक मतलब ब्यूटेरम, ओके, ब्यूटेरिक मतलब ब्यूटेरम इन द सेंस ब्यूटेरिक वर्ड इज डिराइव फ्रॉम ब्यूटेरम विच मीन्स बटर, ओके. आपने देखा होगा जब बटर खराब हो जाता है, रैंसिड हो जाता है, तो वो एक अजीब सी स्मेल देता है, ओके, अनप्लीजेंट सी स्मेल होती है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ब्यूटेरिक एसिड, ओके. लाइक वैलेरिक एसिड, वैलेरिक वर्ड इज डिराइव फ्रॉम वैलेरियम. सो इन दिस वे दिस कॉमन नेम्स आर डिराइव, और हम आज भी उसको उसी नाम से बहुत ज्यादा वाइडली यूज करते हैं, ओके. सो फॉर्मिक एसिड HCOOH, ओके. Then acetic acid is CH3COOH. प्रोपियोनिक एसिड जिसमें 3 कार्बन है, राइट, ब्यूटेरिक एसिड जिसमें 4 कार्बन है, इंक्लूडिंग COOH ग्रुप, ओके, इंक्लूडिंग COOH ग्रुप, ये मत भूलना. वैलेरिक एसिड 5 कार्बन आइटम, कैप्रोइक 6 कार्बन आइटम, ओके. नाउ ये जो है ना नीचे वाले, लाइक palmitic acid, stearic acid, archidic acid, okay, then lauric acid, these are fatty acids, okay. Fatty acid because they contain large number of carbon atoms, okay, they contain large number of carbon atoms, that's why they are known as fatty acid. They have the long continuous carbon chain, तो इसीलिए बोला जाता है फैटी एसिड्स है. और इनके एटलीस्ट आपको ये याद रखना है कि पाल्मिटिक एसिड में कितने टोटल कार्बन आइटम है, ओके. लाइक पाल्मिटिक एसिड का स्ट्रक्चर है CH3 CH2 14 COOH, तो 14 तो CH2 ग्रुप हो गए, दिस वन इज 15 एंड दिस वन इज 16, तो पाल्मिटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन है. ये क्वेश्चन MCQ में पूछे गए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाल्मिटिक एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेरिक एसिड. तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें अगर इतना पता है कि पाल्मिटिक में 16 कार्बन आइटम है तो फिर ये कैसे भी दे, ये अगर ऐसे देते हैं C16H, अगर इस तरीके के फॉर्मूला में देते हैं तो भी आप कर पाओगे, राइट, या फिर C15H समथिंग COOH ऐसे देते हैं तो भी हम कर पाएंगे, राइट. तो अगर हमें ये पता है तो हम कर पाएंगे. स्टेरिक एसिड में टोटल कितने हैं, CH3 CH2 16 COOH, तो ये MCQ के लिए बहुत काम की चीज है. लॉरिक एसिड CH3 CH2/10 COOH, ओके. ऐसा भी पूछ सकते हैं कि लॉरिक एसिड का IUPAC नेम क्या है, तो डोडेकेनोइक एसिड. तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ओके. बाकी कॉमन नेम बहुत आसान है. कैप्रोइक में 6 कार्बन आइटम है, देन कैप्रिलिक में देयर आर 8 कार्बन आइटम्स. सो दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके. Okay, now what if we want to name the carboxylic acid in common name system but it has substituent? तो we use Greek letter system, okay, अल्फा बीटा वाली सिस्टम हम यूज करेंगे.
gamma, delta, omega, epsilon. Okay, so the carbon atom which is adjacent to the COOH group, ये आपका COOH group है, और ये कार्बन एटम जो इसको अटैच्ड है डायरेक्टली, दैट इज योर अल्फा कार्बन. द कार्बन नेक्स्ट टू अल्फा इज बीटा, कार्बन नेक्स्ट टू बीटा इज गैमा, और उसके बाद वाला डेल्टा. तो जो कार्बन COOH ग्रुप को डायरेक्टली अटैच्ड है दैट इज योर अल्फा कार्बन. इतनी चीज याद रखिएगा. ओके, सो अभी देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है. CH3, CH2, CH, COOH. ओके, कॉमन नेम को हमको, कॉमन नेम में हमें इसको नेमिंग करनी है. ओके, फोर कार्बन containing common name of acid is butyric acid. ओके, तो अभी हम देखते हैं इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है. बट देयर इज OH ग्रुप एट व्हाट पोजीशन, विच इज अटैच्ड टू अल्फा कार्बन. ये देखिए ये आपका COH है, दिस कार्बन इज नेक्स्ट टू COH, तो ये हो गया अल्फा कार्बन. तो OH का पोजीशन क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी. क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड. नाउ इन दिस ग्रुप अगेन दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा पोजीशन पे आपका NH2 ग्रुप है. NH2 ग्रुप का नाम क्या होता है, अमीनो ग्रुप. और कार्बन चेन कितने कार्बन एटम की है, दैट इज ऑफ 3 कार्बन एटम, राइट. तो 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड इज प्रोपियोनिक एसिड. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज ना, क्योंकि प्रोपियोनिक एंड प्रोपेनोइक, देखो यहाँ पे कॉमन नेम में 3 कार्बन कंटेनिंग अगर एसिड है, CH3, CH2, COH है, तो दैट इज प्रोपियोनिक एसिड इन कॉमन नेम एंड प्रोपेनोइक एसिड इन योर IUPAC नेम. ओके, तो याद कैसे रखोगे, देखो अल्केन का नाम क्या होता है, प्रोपेन, है ना, और हमको ई रिप्लेस करना होता है, तो इसीलिए इसका नाम है प्रोपेनोइक, और कॉमन नेम में प्रोपियोनिक. ओके, so this is alpha amino propionic acid. Here it is again, this is alpha carbon and this is beta carbon. Okay, तो ये Cl किसको attached है, this is attached to beta carbon. Okay, अल्फा कार्बन की वैलेंसी satisfied है, ये देखो 1 2 3 और ये कार्बन. Okay, so this is beta chloro propionic acid. So in this way common name system substituent हम naming करते हैं. Okay, now IUPAC nomenclature कैसे होगा, the very first rule is selects the continuous longest carbon chain containing carboxylic group. This is important. Okay, जिसमें carboxylic group रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर carboxylic group आपने बहुत मतलब लॉन्ग कार्बन एटम चेन कंसिडर की है, सिलेक्ट की है, ओके, लेकिन उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा. ठीक है, हमें ऐसी कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो. ओके, सो जो आप कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे तो उसमें जितने कार्बन होंगे दैट रिस्पेक्टिव अल्केन में से आप क्या करोगे, आप ई को ड्रॉप करोगे. ओके, ई को रिप्लेस करोगे किससे, ओइक एसिड से. ओके, तो इसीलिए जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनकी नेमिंग कैसे होती है, अल्केन इन विच ई जो है इज रिप्लेस्ड बाय ओइक एसिड. तो अल्केन का हुआ अल्केनोइक एसिड. ओके, अल्केनोइक एसिड, OIC एसिड, इससे रिप्लेस किया हमने किसको, ई को. ठीक है, तो दिस इज ओइक एसिड, अल्केनोइक एसिड. फाइन. नाउ बाकी जितने भी है, अगर हम नंबरिंग की बात करें तो नंबर द कार्बन ऑफ द पैरेंट चेन स्टार्टिंग विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ओके, हमें ये कार्बन भी कंसिडर करना पड़ेगा. तो जब भी हम नंबरिंग करेंगे तो द COOH ग्रुप शुड ऑलवेज गिव नंबर 1. COOH जो ग्रुप है उसको हमेशा फर्स्ट नंबर ही मिलेगा. नंबरिंग वही से स्टार्ट होगी जैसे हमने एल्डिहाइड में किया था, राइट. एल्डिहाइडिक कार्बन को भी हम फर्स्ट नंबर देते थे, उसी तरीके से हम कार्बोक्सिलिक कार्बन को भी फर्स्ट नंबर ही देंगे. ओके, सो इट इज ऑलवेज एट द बिगिनिंग ऑफ द कार्बन चेन. फाइन. और जो बाकी के ग्रुप है, जो बाकी के सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसका पर्टिकुलर नंबर देके, नेमिंग देके, वी हैव टू राइट द नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. लाइक इफ देयर आर सब्स्टिट्यूएंट्स और दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, राइट, तो वी विल यूज द प्रीफिक्स डाई, ट्राई.
डिपेंडिंग कि कितने प्रीफिक्स है ना. अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, वी विल गो फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ओके, बट पोजीशन ऑफ दिस स्लोगन शुड बी इंडिकेट प्रॉपरली. इनका पोजीशन हमें प्रॉपरली इंडिकेट करना होता है. फाइन. तो अभी देखो CH4 है ना, 1 कार्बन कंटेनिंग अल्केन इज मीथेन, राइट. अभी यहाँ पे है HCOOH, कॉमन नेम है इसका फॉर्मिक एसिड. कितने कार्बन है इसमें, 1 है ना. तो 1 कार्बन कंटेनिंग अल्केन इज मीथेन, जिसमें से E हमको ड्रॉप करना है किससे, बाय ओइक एसिड. तो नाम क्या हो गया, मिथानोइक एसिड, राइट. यहाँ पे CH3COOH है, मतलब कितने कार्बन है, 2, 1 एंड 2. 2 carbon containing alkane is ethane. E is replaced by oic acid, तो नेम इज इथानोइक एसिड. यहाँ पे कितने कार्बन आइटम है, 3, 1 2 3. 3 कार्बन कंटेनिंग अल्केन कौन सा होता है, प्रोपेन होता है. तो अगेन E रिप्लेस किया हमने बाय ओइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड. यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4. 4 carbon containing alkane, butane, in which E is replaced by oic acid. So this one is butanoic acid. Okay? So इसी तरीके की आपको नेमिंग सिस्टम करनी है. ओके, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. CH3 CH Cl CH CH3 COOH. ठीक है, तो सिलेक्ट द कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन. तो 1 2 3 and 4. ओके, 4 कार्बन कंटेनिंग अल्केन, ब्यूटेन, राइट. तो ब्यूटानोइक एसिड हो गया ये तो. बट सेकेंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है और डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है. तो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, हम इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, राइट. सो क्लोरो पहले आता है, मिथिल बाद में आता है. तो इट इज 3 क्लोरो 2 मिथिल ब्यूटानोइक एसिड. 3 क्लोरो 2 मिथिल ब्यूटानोइक एसिड. ओके, बाकी सारे रूल सेम होते हैं, जैसे हमने IUPAC में पहले रूल्स देखे हैं, बाकी सारे रूल सेम रहेंगे. सिर्फ आपको लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करनी है जिसमें COH ग्रुप है. नंबरिंग हमेशा COH ग्रुप से ही स्टार्ट होगी. ओके, दैट शुड गेट ऑलवेज नंबर 1. इंडिकेट द प्रॉपर पोजीशन ऑफ योर लोकेंट. Arrange them in alphabetical order if they are different, and if they are same, use the prefix di, tri. Okay, so that is the thing. Now, what if there are dicarboxylic acid? Like हमने कॉमन नेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जांपल्स देखे हैं यहाँ पे, राइट. COOH कितने कार्बन है, 2 कार्बन है. 2 कार्बन कंटेनिंग अल्केन, इथेन. बट जब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो जो E होता है वो रिप्लेस नहीं होता, वो रिटेन्ड रहता है. ओके, सो 2 कार्बन कंटेनिंग अल्केन इज इथेन. तो यहाँ पे E रिप्लेस नहीं होगा, E वैसा ही रहेगा, बस आगे आ जाएगा डायोइक एसिड. अभी तक हम क्या लगा रहे थे, मोनोकार्बोक्सिलिक में ओइक एसिड लगा रहे थे. यहाँ पे हम लगाएंगे डायोइक एसिड. डाई बिकॉज यहाँ पे 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट है. तो ये देखिए इथेन डायोइक एसिड, राइट. यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 and 3. सो दिस इज प्रोपेन डायोइक एसिड. ओके, उसके नीचे 1, यहाँ पे 2 है, तो 2 3 and 4. 4 कार्बन कंटेनिंग अल्केन इज ब्यूटेन. E रिटेन्ड है. ओके, E रिप्लेस नहीं करना है, तो इट इज ब्यूटेन डायोइक एसिड. आगे समझ में, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में हम रिटेन्ड करते हैं, हम रिप्लेस नहीं करते. एंड वी यूज द सफिक्स डायोइक एसिड. कौन सा सफिक्स यूज कर रहे हैं हम, डायोइक एसिड. ओइक एसिड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, और डाई मतलब 2 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है. ओके, फाइन, दिस इज अंडरस्टूड. ओके, मूविंग फर्दर. तो अभी देखिए हमें कुछ फॉर्मूलाज लिखने हैं. यहाँ पे फॉर्मूलाज ऑलरेडी दिए हैं आपको, तो ये नेमिंग दी है, आपको इस पे से फॉर्मूला बनाना है. ओके, सो विल ट्राई कि आप किस तरीके से बनाओगे. फाइन. सो 3
क्लोरोपेंटानोइक एसिड। तो जब आपको नेमिंग दी जाती है, सबसे पहले तो ये देखिए कि कौन सा एसिड है। इट इज पेंटानोइक एसिड, मतलब कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। ओके, सो सबसे पहले तो 5 कार्बन लिख लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, उसके बाद देखो कि कौन सा लोकेंट है, क्लोरो है, और कौन से पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे। तो थर्ड पोजीशन पे हमने लगा दिया क्लोरो, राइट। और पेंटानोइक है तो आपका फर्स्ट कार्बन कौन सा रहेगा, COOH रहेगा, है ना। और बाकी की वैलेंसी आप फिर सेटिस्फाई कर लीजिए। दिस इज द सिंपल वे टू राइट द फॉर्मूला। फाइन, यहाँ पे देखो 2 मिथिल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड है, मतलब 3 कार्बन होंगे, और सेकेंड पोजीशन पे क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होगा, राइट। COOH CH CH3 CH3। और उसके बाद आप कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड कीजिए, लाइक हाइड्रोजन अटैच कीजिए। फाइन, गैमा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, अभी ये कॉमन नेम है, राइट। ब्यूटारिक एसिड है, मतलब कितने कार्बन होंगे, 4, और हाइड्रोक्सी की पोजीशन क्या है, गैमा, राइट। सो ये हो गया हमारा 4 कार्बन आइटम। ओके, ये कार्बन कौन सा है, अल्फा, दिस वन इज बीटा एंड दिस वन इज गैमा। तो यहाँ पे है आपका OH ग्रुप, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एंड दिस इज COH, राइट। बीटा क्लोरो कैप्रोइक एसिड, अभी इसीलिए मैंने आपको बोला कि कैप्रोइक एसिड, वैलेरिक एसिड, दिस थिंग यू शुड नो कि कितने कार्बन आइटम है। ओके, कैप्रोइक में 6 कार्बन आइटम होते हैं। फाइन, काउंट इट, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, लोकेंट है क्लोरो विच इज एट बीटा पोजिशन, सो ये कार्बन है आपका अल्फा कार्बन, और ये कार्बन है आपका बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पे हमने क्या लगाया, Cl। ओके, और बाकी वैलेंसी हम बाद में सेटिस्फाई कर लेंगे विथ हाइड्रोजन। फिनिल एसिटिक एसिड, फिनिल ग्रुप है, एसिटिक एसिड है, मतलब 2 कार्बन है, राइट। 2 कार्बन, अभी उसमें फिनिल है, तो दैट मीन्स ये जो कार्बन है इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया बाय फिनिल ग्रुप, सो दिस इज फिनिल एसिटिक एसिड। ओके, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन और COH ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, राइट। बेंजोइक एसिड अगर बोला जाए तो, ओके, अगर बेंजीन रिंग है और उसको COH ग्रुप अटैच है तो दैट इज योर बेंजोइक एसिड, है ना। अच्छा, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है टू योर ग्रुप, ओके, if more than one functional group is attached to the ring or present in the compound, तो आप क्या करोगे, तो आप प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जाओगे। आप किसके अकॉर्डिंग जाओगे, यू विल गो अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस, और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा हमारा प्रेफरेंस, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ओके, और उसके बाद आएंगे बाकी सारे ग्रुप, अल्डेहाइड, कीटोन, हाइड्रोक्सिल। ओके, ऑल दिस ग्रुप कम आफ्टर दैट। फाइन, तो अच्छा ये देखो, दिस इज वन कंपाउंड, तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड। ओके, क्यों, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप प्रेजेंट है, COOH एंड OH। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, COOH, और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा, OH। और जब हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को नेमिंग करते हैं तो ऑलवेज start numbering from that carbon which is directly attached to COOH group. Okay, so this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Okay, हम इधर से नहीं आएंगे क्योंकि इधर से लोकेंट को स्मॉलेस्ट नंबर मिल रहा है, तो वी विल गो इन दिस डायरेक्शन। ओके, हम इस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। फाइन, तो इसका नेमिंग क्या है भाई, 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास, हाइड्रोक्सी एंड मिथाइल। तो पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा 2 हाइड्रोक्सी, उसके बाद आएगा 4 मिथाइल, उसके बाद आएगा बेंजोइक एसिड। ओके, so in that way you have to name the compound. Okay, consider if COH group is present and formyl group is present. Okay, CHO and यहाँ पे है आपका COOH, एक अल्डेहाइड ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, किसको प्रेफरेंस दोगे आप,
preference is for carboxylic group and aldehydic group is substituent over here. और जब aldehydic group substituent होता है तो हम use करते हैं formyl. Okay, so this is formyl benzoic acid, 2-formyl benzoic acid. Okay, oxo group है मतलब keto group है. Okay, so in that way you have to keep the thing in mind. फिर चाहे वो aliphatic chain हो या फिर aromatic compound हो, नेमिंग ऐसी ही होगी. अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट. यू हैव टू डिसाइड द ऑर्डर which is already given. Just learn that order. Okay, okay, now these are the compounds in which we have to name the compounds. तो अभी हम ट्राई करते हैं नेमिंग का. Okay, so this is the first compound. 1 2 3 4 and 5 carbon containing chain है ये. 5 carbon containing alkane, that is your pentane, right? तो pentanoic acid, E replace हो जाएगा ना oic acid से, so it is pentanoic acid. और थर्ड पोजीशन पे है आपका क्या, मिथाइल ग्रुप. so this is 3-methyl pentanoic acid. coming to next one, भी यहाँ पे चेन देखते हैं कार्बन की कितनी लंबी चेन बनती है. this is 1 2 3 4 5 and 6. ओके, अगर हम ये वाली चेन ले तो कितने की बनेगी. दिस इज ऑफ 5 कार्बन आई गेस, 1 2 3 4 5. या तो ये चेन पॉसिबल नहीं है. हम ये स्ट्रेट चेन लेंगे ऑफ 6 कार्बन एटम. ओके, तो 6 कार्बन कंटेनिंग अल्केन इज हेक्सेन, तो हेक्सानोइक एसिड हो गया ये, राइट. और सब्स्टिट्यूएंट है थर्ड पे, दैट इज इथाइल ग्रुप, और आपका सिक्स्थ पे है क्लोरो. तो दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो विल अरेंज देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स. ओके, तो पहले आएगा क्लोरो और पहले आएगा इथिल और फिर आएगा क्लोरो. कौन सा आएगा पहले, पहले क्लोरो आएगा और फिर इथाइल आएगा, राइट. तो इट इज 6 क्लोरो 3 इथाइल हेक्सानोइक एसिड. नाउ यहाँ पे जो हम थर्ड कंपाउंड देख रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है. ओके, सो दिस इज अल्कीन. और जब अल्कीन आता है तो हम क्या करते हैं, हम अल्कीन का ई रिप्लेस करते हैं बाय ओइक एसिड. ओके, तो हम डबल बॉन्ड का भी पोजीशन हमें इंडिकेट करना होता है, राइट, और सब्स्टिट्यूएंट का भी पोजीशन हमें इंडिकेट करना होता है. तो 1 2 3 4 and 5. so this is pentene, pent2in, right. pent2in और E रिप्लेस हो गया ओइक एसिड, सो pent2inoic एसिड. ओके, और 3 मिथाइल, थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है आपका मिथाइल ग्रुप है, राइट. सो 3 मिथाइल 2 पेंटेनोइक एसिड या pent2inoic एसिड, आप ऐसे भी लिख सकते हो. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट कंपाउंड, 1 2 3 4 5 and 6. so this is hexene, right. 5 हेक्सेनोइक एसिड, ई रिप्लेस हो जाएगा. और फिफ्थ कार्बन पे ब्रोमीन अटैच्ड है. ओके, ब्रोमो अटैच्ड है. थर्ड पे मिथाइल ग्रुप है, तो इट इज 5 ब्रोमो 3 मिथाइल 5 हेक्सेनोइक एसिड. ओके, हेक्स 5 इनोइक एसिड ऐसा भी हो सकता है, फाइन. एंड आई विल सजेस्ट यू गो फॉर हेक्स 5 इनोइक एसिड, ऐसा लिखे आप लोग. ओके, अभी देखो यहाँ पे OH ग्रुप है, COH ग्रुप है, सो दिस इज हाइड्रोक्सी ग्रुप. नाउ ये अल्कोहल कंसिडर नहीं करेंगे हम, ये एसिड कंसिडर करेंगे, और ये जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है हमारे लिए. ओके, 1 2 3 4. so 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, राइट. 1 2 3 4 ब्यूटीन है ये, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट. और थर्ड पोजीशन पे आपका OH ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे आपका क्लोरो है, तो इट इज 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट 2 इनोइक एसिड. ओके,
I hope these compounds are clear to you. Solve number of examples, okay? तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे नोमेनक्लेचर में. गाइस, नोमेनक्लेचर इज वेरी सिंपल, सारे रूल सेम है. ओके, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे हमने ई रिटेन किया है, कहाँ पे हमने ई को रिप्लेस किया है. एरोमेटिक कंपाउंड में दे आर ऑल आर द डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड. ओके, तो सारे बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव ही हमें कंसिडर करने होते हैं. लाइक टोलविक एसिड हमने देखा था एक एग्जाम्पल जब हम पढ़ रहे थे, राइट? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. तो कंसिडर कीजिए ये कोई है, कार्बोक्सिलिक एसिड है. So this is your COOH group, okay, and here it is CH3 group. So this is the derivative of benzoic acid. So this is 1, 2, 3. So this is 3-methyl benzoic acid. Okay. यहाँ पे अगर और कोई ग्रुप है, यहाँ पे अगर OH ग्रुप है, then if there is another NO2 group or anything else, okay, right? So it is 3-methyl 4 and 5, okay, 3-methyl 5-nitrobenzoic acid, राइट? COH ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है, सो दैट इज अमीनो बेंजोइक एसिड. तो उस तरीके की नेमिंग सिस्टम भी हो सकती है. ओके, सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई है. फाइन, ट्राई मेनी एग्जाम्पल एज यू कैन, तो उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड यू विल नेवर गेट कंफ्यूज इन आयोबेसिक नोमेनक्लेचर. गाइस, ये बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्केट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, so see you in next video. Till then, keep learning, keep practicing. Bye bye.